خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا، راشٹروادی کو لیٹر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا، مگر کوئی نہیں آئے۔ اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی، نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا، اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے پانچ ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، شناخت کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہیں۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیک ورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے اور نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لیٹر ان کو دیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عظمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، کہ حشر کے میدان میں ہم کو صفات دلانے والے سے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے، دیکھو بارش بھی رک گئی ماشاءاللہ، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی پانی کا
बाद एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं, इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हक कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने यह सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहाँ है साबित बिन कैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूँ, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे हैं, हदीस को बयान कर रहे हैं। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, तकलीफ आया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका के बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल्लाह अलैहि की हदीस को बयान कर रहा था, उसके अदब को मलूज रखकर इस दस्ते वाले की दस्त को बर्दाश्त कर रहा था बिच्छू की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फखर से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद है जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था, बोल तो नहीं हो रहे ना आपको? तो आज हम मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया के लोगों ने, अरे नहीं ऊपर नहीं, हम जमीन पे आ गए शेर,
मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के, मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ 100 दिनों ऐसी तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो, आवाज सुनो। अब फिर बारिश हुई तो क्या करें? मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं ना, आए हैं ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? नहीं, तो मजलिस बड़ी है, वैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुम मेरा बाजू बनोगे, नौजवानों तुम साथ दोगे मेरा। सुनो मेरी बात, वो बदलापुर का बदला ले लिए, वो पोस्टर पे लिखा। हमने कहा कि अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, अम्बेडकर का बना हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अम्बेडकर का बना हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं, वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। मीडिया नहीं समझी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे मुंबई में, आए थे। बीजी स्टेशन पर मासूम भारत के लोगों के से खून की होली खेली, बड़े बड़े होटलों में जाकर लोगों का कत्लेआम किया उन टेररिस्ट में। उसमें एक टेररिस्ट था जिसका नाम अजमल कशफ था। उस कशफ को पकड़ने में हमारे एक बहादुर हिंदू भाई पुलिस वाला शहीद हो गया हुआ। हम कशफ को पकड़े, जेल में डाले, कोर्ट में केस चलाए, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हमने फांसी दी। जब मर गया, जब वो जालिम मर गया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा हम मुंबई की मुबारक जमीन पर एक दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। तो कसम को कहाँ डालना पड़ा? जेल में। जब कसम को हम कोर्ट से सजा दे सकते हैं तो बदलापुर के शैतान को क्यों नहीं सजा दे? बताओ, मेरा सवाल ये। मगर नहीं, गोली मारेंगे। अरे याद रखो, तुम आज गोली चला रहे हो, कल किसी और पर भी गोली चलेगी। हमारे बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को याद नहीं होगा। ख्वाजा यूनुस किसको याद है? ख्वाजा यूनुस किसी को याद नहीं है, तुमको याद है। उसकी माँ आज भी, उसके रिश्तेदार आज भी पुकार पुकार कर गए थे, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो ढालो, अगर मर गया तो उसकी खबर बता दो। ख्वाजा यूनुस है तो याद रखो, तुम गोली से अगर बदला लोगे तो बदले की भावना से देश नहीं चलेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। अगर ये सरकार ये पोस्टर लगा के कह रही है कि हम बदलापुर का बदला ले लिए, अरे ये माफिया, ये गुंडे जो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करते। आप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस भारत के प्रधानमंत्री का हाथ भी देखते हैं। फडणवीस कहते मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाथ देखना कोई हराम चीज नहीं है, मगर जब आप ख्वाब देख रहे हैं
تو इंसाफ के बारे में सोचो। हम तो ये चाहते थे कि बदलापुर के लोगों को कोर्ट सजा देती उस जालिम को, वो जेल में सड़ता, अपनी मौत के लिए पुकारता और तब जाकर उसको बहुत अपने आगोश में ले लेनी, मगर आपने उसको आसान रास्ता दे दिया। ये इंसाफ है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी का दिल नहीं भरा मुसलमानों को तंग करने से। मोदी ने अपने बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़वा दिया। जिस तरह आज हम पानी में खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तसव्वुर करो कि तुम्हारा 20,000 स्क्वायर फुट का घर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली ने 20,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया। घर में सामान मुंतकिल हो रहा है कि आज नहीं तो कल घर में चले जाऊंगा। ये जो जालिम जिसने महाराष्ट्र में हमारे नबी रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, छतरपुर की जनता ने एहतजाज किया, वायलेंस हो गया। हाजी शहजाद को कलेक्टर ने कहा रुकाओ, जनता नहीं सुनी तो क्या हुआ बाद में? हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को मोदी के बुलडोजरों ने तोड़ दिया। आज हाजी शहजाद अली के घर वाले, आज हम जलसा सुनने के लिए बारिश में भीग रहे हैं, वो 1 महीने से धूप में आसमान के नीचे खड़े हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बारिश के नीचे खड़े हैं। अरे कितने घरों को तुमने तोड़ दिया। याद रखो मोदी, जुल्म जब होता है तो एक दिन जुल्म का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा और अल्लाह इंसाफ करेगा, इंशाअल्लाह। मैं सलाम करता हूँ हाजी शहजाद अली के जज्बे को। हाजी शहजाद अली ने वीडियो निकाल कर कहा कि मैंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने बकवास बकी थी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम प्रोटेस्ट किए। अगर मेरे रसूल के लिए एक घर को कुर्बान करना है तो मैं इसे 2 घर को अपने हबीब अल्लाह को कुर्बान। अगर याद रखो हम बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, बच्चे हैं, माए हैं। मैं तुम्हारे से एक अपील कर रहा हूं, तुम यहां बैठे बैठे अपने दिल से दुआ करो, अपने दिल में दुआ करो कि अल्लाह जो ये जालिम लोग हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे कि हम तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे कि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, या अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरे हबीब को खातमुन नबीन मानते हैं। परवरदिगार, जो हम पर गुजर रही है हम उसको तेरे हवाले करते हैं, तू इंसाफ कर। और मुझे यकीन है कि जो गरीब और मजलूम है, चाहे हिंदू मुसलमान दलित आदिवासी हो, जो हुक्मरान जुल्म करेगा अल्लाह देख लेगा उन लोगों को। अरे तुम हमको कमजोर समझ कर दबा रहे हो। तारीफ कराए कि जिन ताकतों ने कमजोरों को दबाया था, तारीफ ने देख लिया कि अल्लाह ने उन कमजोरों के सरों पर ताज को रखा। जिन जालिमों ने भूखे प्यासों को मारा और पीटा, अल्लाह ने उनके सरों पर तख्त व ताज की जिम्मेदारी आयद कर दी। जो भूखे थे, 12-12 दिन के भूखे थे, अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी कि लोग उनका सदका लेने के लिए लोग कम पड़ गए, इतनी दौलत अल्लाह ने उनको अता दी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह पर तवक्कल करो, उम्मीद अल्लाह से रखो और इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम कर दिए। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं सुना कि मोदी ने कहा था कि भारत की मुस्लिम माए ज्यादा बच्चों को पैदा करती है? मोदी जी, आपकी मां को 6 बच्चे थे।
हैं कि बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। मोदी जी, आपको कैसे मालूम बच्चों के बारे में, उनको बताओ। Asking a question. With all the due respect to the Prime Minister, मीडिया वाले दिल पर मत लो, गुर्दे पर लो। बात में हिंदी आएगी नहीं मालूम। हमारे गली को बोल के, हमारे मैदान को बोल के, हमारे जीएसएस को बोल के, बोलते हमारे मुंह की जबान है। और मोदी जी क्या बोले भाषण में? हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र निकाल कर देंगे। ये हमारी माँ और बहनें बैठी है, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आप पसंद करेंगे कि किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र आपको छीन कर दिया जाए? नहीं। तुमसे नहीं, इनसे पूछो। हर चीज में तुम आ जाते। हमें 50% आबादी है, उसको वोट देना पड़ेगा इनका भी। आपको पसंद है कि कोई हिंदू बहनों के घरों से मंगलसूत्र छीन कर ला कर दे? आप कयूं है नहीं है? अरे ये वो बहनें हमारी माँ है, मोदी जी वाले मंगलसूत्र छीन के लाते हैं। मोदी जी, भारत में मुसलमानों का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट गिर चुका है। और इंशाअल्लाह ताला एक आइंदा 70 साल में हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन स्टेबिलाइज होगा, स्टेबिलाइज। अब वो शादी करने के बाद बोलना, समझेगा? और बीवी पे जुल्म नहीं करना, बीवी को छोड़ के नहीं रहना अकेले, बीवी के साथ रहना, तो उसमें मजा है। तो बीवी को छोड़ के दुनिया को ज्ञान देता, उसको क्या बोलते आपको मालूम है? तो अब नरेंद्र मोदी, हाँ अभी आपको मालूम है, सुनेगा। वरना मीडिया वाले बोलेंगे भगो भाषण क्या करेंगे। अब नरेंद्र मोदी एक वक्त के कानून को लाए, वक्त का बिल लाए। आप अंदाजा लगाइए, वक्त की जो जायदादें हैं वो हमारे आबाद ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से उसका वक्त किया। मोदी बोले नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी, वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। और मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं दिल लाया हूँ और दिल के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक है। सुनो, वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी होगा। मोदी जी, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे कि वही वक्त कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान, 5 साल से प्रैक्टिस। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हैं ये परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? अगर जिसकी दाढ़ी है वो प्रैक्टिसिंग है नहीं, मोदी जी बोलो तो मोदी जी बोलेंगे जिसको भी दाढ़ी है। मगर मुसलमान की दाढ़ी रखता है। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं कि टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज हमारे हवेली करते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्वीर हाथ में लेके जिक्र करेगा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? नहीं गिरवा। मैं गिराने आया हूं तो आपको देते नहीं। मोदी जी से पूछना चाह रहे, अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? हम मोदी जी से पूछना चाह रहे, शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? समझे ना, असल मन को इशारा का। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया है। आप होते कौन है मोदी जी? मुझे
سرٹیفکیٹ دینے والے. میں جب اللہ کے کرم سے اپنی اماں کے پیٹ میں تھا تو میری اماں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر قل واللہ احد قل واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہماری ماں نے کہا ہم کو پیدا کی. اب مودی جی بولے بیٹا 5 سال جب ہو جائیں گے نا میرے پاس آنا, میں چائے پلاؤں گا, تم کو گیان بن گا اور تم کو بولوں گا پکوڑا بناؤ. اس کے بعد مودی جی بولیں گے بیٹا سیلفی لیتے ہیں. واہ مودی جی, اب آپ طے کریں گے کون مسلمان ہے. یہ وقف بورڈ کے قانون میں بنایا گیا. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ بل قانون بنے گا, ہم اور آپ ایک بابری مسجد کو کھول چکے ہیں, ہم کئی مسجدوں کو کھولیں گے. ہم ایک بابری مسجد کو کھوئے, کئی مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں گی, کئی جگہیں ختم کر دی جائیں گی, خدا نخواستہ خانقاہیں برباد کر دیے جائیں گے, قبرستانوں پر بلڈنگیں کھڑا کر دی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ مودی نے اس بل میں وقف یوزر کو ختم کر دیا. ابھی RSS BJP کے دم کھنڈے یہ کہتے ہیں کہ وقف یوزر سنو, وقف یوزر ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرم میں بھی ہے. بائی یوزر بائی کسٹم ہمارے ہندو بھائی بہن کی پلیسز آف ریلیجن کو بن جاتی ہے. اب یہ بولتے ہیں میرے خلاف ایک سوشل میڈیا پر ان کے آگے دماغ کے الوؤں نے, ان کے آگے دماغ کے ٹیوبلائٹ نے, ان کے تھمس اپ نے شروع کیا ہوا, اس نے اچھا بول دیا. ارے بھائی, تلنگانہ کا قانون پر, آندھرا کا انڈومنٹ ایکٹ پر, تمل ناڈو کا انڈومنٹ ایکٹ پر, اڈیشہ کا انڈومنٹ ایکٹ پر اس نے لکھا ہوا ہندو بھائیوں میں بھی بائی یوسیج کا کام استعمال ہوا ہے. مگر جب ہندو دھرم میں یوسیج ہے تو مسلمانوں کے دھرم کے وقت یوزر کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائی, اس قانون میں بہت سی غلطیاں ہیں. بہرحال میری آپ سے اپیل ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر یہ اعلان کرے گا کہ ہم کو اس بل کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو آپ ساتھ دیں گے, آپ ساتھ دیں گے. اچھا, پھر یہ لوگ ایسے لوگ بھی مودی جی کی چاہت میں ہیں. ابھی کیا نام ہے اب میں دارالسلام کی تقریر میں سنیے, ارے سنو 5 منٹ باقی. دارالسلام کی تقریر میں نے ان کے بارے میں کہا تو لوگ نے مجھ سے پوچھے کہ آپ نے رنگ برنگی پہن کیا. میں نے کہا اس لیے کہا یہ RSS کے اور جب رنگ کی بات آئی تو امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا, امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا, میں اس رنگ کو ماننے والا ہوں. امیر خسرو نے کہا تھا آج رنگ ہے, آج رنگ ہے ایمان, رنگ ہے نہیں, مورے محبوب کے گھر رنگ ہے لیے, سجن ملاوے رہا, سجن ملاوے رہا, مورے آنگن کو جگت یارو, جگت اجارو. میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھی ہے, مورے 3 پایو نظام الدین ہو. یہ جو مودی جی کو نمسکار, یہ RSS کے رنگ میں ہے. اور جو امیر خسرو نے کہا تھا محبوب الہی کے بارے میں, اس رنگ میں اور اس رنگ میں زمین آسمان کا بات ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو معلوم اجمیر کی درگاہ کے خلاف آج اجمیر میں کیس پڑ گیا کورٹ میں, اور کیس ڈالنے والوں نے کہہ دیا کہ اجمیر کی درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اس کے نیچے ایک مندر ہے. آپ بتائیے, آپ ابھی وقت کا قانون بنا نہیں مگر یہ لوگ اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آنے والے وزارت سبھا میں
इस विधानसभा से हमने रईस लश्करिया साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रईस लश्करिया को अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप इलाके वालों के लिए महाराष्ट्र में मंदिर की कामयाबी के लिए आप दुआ करेंगे। तुम कहीं करेंगे तो नहीं, के नाम से डरेंगे तो नहीं। अगर आप वादा कर रहे हैं तो मेरे यहाँ से बाहर अल्लाह को हम साबित कर रखे और इंशाअल्लाह